Hi, welcome to one more Hi. episode. Hi, Shailendra. Welcome to one more episode of Zindagi Ka Safar. And uh, some of you might be wondering why exactly I have a background which has got such a beautiful place. Yeah, some of you might know. It is from Beats Pilani, and this is, I think, the Saraswati temple which is there. And I think when I had gone long back when I was a student days, I was doing my MBA. I went there for some paper presentation, and I looked at the campus and looked at the facilities which were there, and I thought, what are the kind of intelligent people who study? मैं तो कभी जा नहीं सकता हूँ, yeah. And then I realized that one of my friend and uh, who has actually done his studies there from Bits Pilani. So सारे intelligent लोग हमें को अभी पता चल रहे. So one such intelligent person is here, which is Shailendra, who is joining us all the way from New Mumbai, who is going to be talking to us about his जिंदगी का सफर. तो सही भाई बताइए आपके जिंदगी के सफर के बारे में. What has happened till this point in time? या भाई बाबू मोशाई जी जिंदगी का सफर हाँ, किशोर कुमार जी कह गए हाँ, जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं। इसी तरह जिंदगी का जो सफर है कोई समझ नहीं पाएगा। समझने की कोशिश करना ये जरूरी है लेकिन समझ नहीं पाएगा। हम्म, So considering the consideration which you have considered for this program, हाँ, I am also considering the same considerations to attending this program, and considering the same consider viewers will also consider the same program to view this program. So such a so मेरा considerate, जिंदगी का such a considerate person you are. I can say that. It's my pleasure you are saying that. Yes. जिंदगी का सफर मेरा शुरुआत हुआ है, मेरा बर्थ हुआ है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। Mhm. Then I started my KG1, KG2 in at Yavatmal when my mother was student. Oh, okay. KG1, KG2, KG2 शादी के बाद उन्होंने एजुकेशन चालू था, तो अच्छा. मैं KG1, KG2 यवतमाल में किया और फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए अमरावती डिस्ट्रिक्ट में तिवसा करके एक छोटा प्लेस है। हम्म, लेकिन KG1, KG2 में जब मैं था तो मुझे टेबल और चेयर मिलती थी बैठने के लिए। जब मैं प्राइमरी सेंटर में गया, गवर्नमेंट वहां हाँ. पे नहीं था, तो मेरे नीचे पेरेंट्स ने बैठना बताया कि मैं जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैं पहले पड़ा. टीचर के टेबल और कुर्सी पे जाके बैठ गया था। हाँ. हाँ. ये ऐसा होने के बाद में उसके बाद में पिताजी मेरे डॉक्टर हैं। हम्म, ही इज MBBS DCH and अच्छा. recently at the age of 78 he completed his journalism diploma also in first Wow. class. Wow. Now it is, now he is 83 years old. Up to 8 years he was driving the scooters and everything. Still he want to drive but we are not permitted him. Okay. So third or fourth or fifth standard हाँ. as per पिताजी के सर्विस के हिसाब से हम we shifted to the Ner Parsopand in Yavatmal district. हम्म, I was there in the Jilla Parishad school. हम्म. For the fourth standard, I was the first merit of in the scholarship examinations. Wow. Now after the fifth, then we shifted to the Nagpur, Okay. and I took that. My father got the that is service at Government College of Medical, हम्म, Nagpur. So I हम्म, took the my sixth standard admission in the Navyuk हम्म, College, Navyuk School. हम्म. Now they call it as a Pandit Bacharam School. Okay. In the same school, I got some good friends, like हम्म, you know the Manda, with हम्म, Dr. Vijay. They are हम्म. my the classmates at that time. Okay. And one of the friend, his name is Pranav Halde. हम्म, 15 days before, after 30 to 35 years, when I spoke with him, मैंने उसको कॉल किया और बोला अरे मैं शैलेंद्र शिरभाते बोल रहा हूँ। तो उसने एक वर्ड में बोला अरे हाफ कृष्णा। मैं बोला ये हाफ कृष्णा तू मुझे क्यों बोला? हाँ, तो बोलता उसकी मदर और मैं वो मुझे हाफ हाँ. कृष्ण इससे जानते हैं कि मेरा जन्म है जन्माष्टमी का। Okay. हाफ कृष्ण इसना बोलता है कि हाँ. बोलता तो तेरा जन्म है ना सवेरे शाम को 6 बजे का, कृष्ण का रात को 12 बजे है, इसलिए मैं तेरे को हाफ कृष्ण जानता हूँ। मुझे भी अद्भुत लगा। मैं 35 ईयर्स के बाद में कॉल करने के बाद उसको इतनी सारी चीजें याद है। हाँ. अचंभे में रहते जो लोग कुछ मिलते हैं, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड के बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं थी। हम्म, Just only Manda provided me his number. Then हम्म, I was also eager to meet him or discuss with him. हम्म, So such a nice friends we received. Then हम्म. after this sixth, when I traveling in the Nagpur to my relatives' place in Bharatnagar, हम्म. every time I was seeing the good, very big building of Hadas. अच्छा. So I was always telling my father, I want admission in this school, big school.
हाँ, और हडस हाई स्कूल ऐसा था कि उस टाइम में हडस हाई स्कूल पूरे नागपुर में ऐसा स्कूल था जिस स्कूल में स्विमिंग टैंक था। ओ तो हाँ, पूरे पूरे इसमें एक ही पूरे नागपुर सिटी में एक नागपुर ही में। था स्कूल था जिसमें स्विमिंग था खुद का। हम्म। So I got the admission in 7th, then 7th to 10th. I done my 10th there, and after they shifted to the Shivaji Science College, Okay. where all the big peoples I meet, just like you and the multi-cap holder that Bhanu. Bhanu, you must be knowing Bhanu is Yeah, yeah. how many caps he is. And I know when you're talking about big, you're talking about our size. You look as Yeah. if you are half our age, either mine or Bhanu's age, but does not mean Yes. that you have to call us big people and all. ठीक है, थोड़ा सा weight Oh, we big have people put are on, but people. I am not saying the matter that is money wise. The people just money like नहीं बोल रहा हूँ, मैं Bhanu. मोटा बोल रहा हूँ. अरे नहीं रे भाई, मोटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है आप मल्टी टैलेंटेड पीपल है। फॉर एग्जांपल अतुल लाटकर और भानु। भानु के पास तू सोचो, कभी इंडस्ट्रीज बन जाता है, कभी एडवर्टाइजर बनता है, कभी होटल चलाता है, कितना कैप पहनता है वो, और वो कितने लोगों को हेल्प भी करता है, हम लोगों को पता भी नहीं रहता है। जस्ट लाइक अपना डॉक्टर 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 सर्कल्स तुम्हारी जिंदगी के सफर में ये तुमने जिंदगी सारे में मेरे से दोस्तों मिले के हुए लोग तुम्हें हैं। सारे दोस्तों के जिंदगी का सफर बता दोगे तो उनके बारे में कब पूछेंगे वगैरह. लेकिन ये मेरे दोस्त जो मिले हुए हैं, काफी हाँ. अच्छे खासे दोस्त मिले। ऐसा आगे मेरा बढ़ता गया। उसके बाद में मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती गया। वहां से मैं ग्रेजुएशन हुआ मेरा। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बिट्स पिलानी गया। वहां पे मुझे काफी अच्छे दोस्त मिले। वन ऑफ द माय गुड फ्रेंड इज अश्विन। ही इज प्रेजेंटली हेड ऑफ द अल्ट्राटेक टेक्निकल सर्विसेज। और दूसरा आशीष है, वो ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द एनर्जी फील्ड। वेरी फंटास्टिक दोस्त। और अभी दोस्त ऐसे भी है वो कि आज की डेट में वी आर कनेक्टेड और टीजिंग ईच अदर, ये भी होता है। ऐसा मेरा सफर चलते रहा। फिर इन द ड्यूरिंग माय बिट्स पिलानी आई गॉट द कैंपस इंटरव्यू में मुझे जॉब लगा गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड में, वेयर देयर आई वर्क 13 years in various positions in the market, from the management in the factory, then distribution, advertising, marketing, technical services, export, market survey, all activities I have done from the in that organization. In that organization, during my marketing, can I tell you some interesting persons where I meet them and what are the challenges there I face? Yeah, definitely. From people, I don't know whether we will be able to relate, but definitely I think incidents will be, without taking the names and all, I think we can share some stories and all. Interesting fact. आपको पता है ड्यूरिंग समथिंग 96 और 97 31st मार्च की बात है। Our marketing target was for the Surat region was 3 crore rupees. 31st की रात हर मार्केटिंग पर्सन को काली रात होती है। मेरा जो मैनेजर था वो बंगाली था। सर वो शाम के उसके 2 घंटे के अंदर 2 सिगरेट के पैकेट खत्म कर दिए थे, क्योंकि 25 लाख कम पड़ रहा था। 25 लाख कम पड़ रहा था। वो बोल रहा था मेरे को 25 लाख नहीं तो साहब मेरे को सूली पे चढ़ा देगा, मैं क्या करूं। हम लोग को एक्चुअली एवरी मंथ हमारा 2 करोड़ का रहता, लेकिन 30 को 100 दिया था। हमने जितना मटेरियल बेचा था उसका सबका पैसा ऑलरेडी कवर कर दिया था। उसके बावजूद हमारे जो डीलर थे उनसे हमने एडवांस में पेमेंट लिया कि 30 कंपनी भी। उस वक्त मेरा जो सेल्समैन था वो गया था संजान गया था। वो रात को आया 10 बजे वहां से चेक कलेक्ट करके। उसने 4 लाख के 2 चेक कलेक्ट करके लाए थे। 8 लाख हुआ। 25 में से 8 गया। उसके बावजूद भी हमारा तो टारगेट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, टोटल 25 चाहिए, कैसे करना है। तो मेरा मैनेजर कहता है, जो बंगाली बाबू, वो कहता है यार मेरे पास एक आइडिया है। 4 लाख है जो वहां पे 4 लिखा है उसको तुम 14 करो। TEE उधर लगाओ और इधर एक डंडी लगाओ 4 के सामने। मैंने मेरा सेल्समैन जो है, बंगाली लोग का ऐसा भी दिमाग चलता है क्या? बंगाली नहीं, मार्केटिंग वाले का चलता है। बंगाली रहो कोई भी रहो, सब चलाते हैं। मेरा सेल्समैन था पंजाबी। वो मेरे को बोला सर ये सर ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को केबिन में लेके गया, ऐसा करना। बिल्कुल नहीं करने का, गलत चीज है। फिर वो सेल्समैन वो मेरे को मेरा मैनेजर बोला भाई तू जब तक ये बोलेगा नहीं तब तक ये करेगा नहीं। मैं गारंटी लगती हूँ, एक चेक पे मैं करता हूँ, एक चेक पे उस पे करने को। अच्छा। फिर बोला देखो जब तक जिससे हमने चेक लाया है उसका जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक वो बैंक में हम लोग नहीं डालेंगे। तो बोलता मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने दोनों ने रात को 11 बजे वहां पे क्योंकि उस दिन तो पूरे हम लोग ऑफिस में रुकते थे, ऑल बैचलर्स थे, वो ऑफिस में रुकते थे। तो उसमें उसने 4 का 14
किया, ऐसे 2 चेक का 28 लाख होगा। तो हमारा टारगेट जो था 25 की जगह 28 लाख होने वाले थे, तो हमारा टारगेट अचीव होने वाला था। ऐसा करने के बाद हमको ये पहले टेंशन था कि बेचारे को 8 लाख का एडवांस लाया है, 28 लाख वो कैसा देगा। उस व्यक्ति को वो सवेरे हमारा 5 बजे चेक लेके, हमारा जो प्यून था वो पूरा लेके अहमदाबाद ट्रैवल हुआ 5 बजे। इसी बंदे को हमने सवेरे वापस संजान भेज दिया जिससे हम लोग चेक लाए थे। वहां पे जब 7 बजे जब पहुंचा तो व्यापारी देखने लग गया कि ये अभी रात को तो इसको मैंने चेक दिया 8 बजे, फिर से क्यों आया। उसने वो पूजा, वो जैन लोग होते जनरली मॉर्निंग को पूजा करते हैं, पूजा कर रहा था, उसका उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था पूजा में क्यों आया, ऐसा क्या इमरजेंसी होगी इसको। जैसे उसने पूजा खत्म कर उसको पूछा तो ये बंदा बोलने को तैयार नहीं। फिर आराम से थोड़ा नाश्ता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने बोला ठीक है, तो उसने बोला देखो ये जेरोक्स दिखाया उसने दोनों चेक की। तो बोले सर ये बोले किसने किया, और शिरवादे साहब को पता है क्या। तो शिरवादे साहब को पता है, लेकिन उन्होंने बोला जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक वो बैंक में चेक नहीं डालेंगे, देंगे नहीं अकाउंट हमको। उन्होंने बोला आप लोगों ने मेरे पे विश्वास रखा है तभी आपने ये किया हुआ है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं करता। आपने किया उस विश्वास को अभी मैं सार्थक करूंगा, और मेरी जिम्मेदारी उस चेक को कैसा पास करना। उस व्यक्ति का नाम फर्स्ट वर्ड आया बताओ, उनका नाम है धनसुख भाई। रियली वो धनसुख भाई है, उन्होंने वो दोनों चेक पास भी किया है। ऐसे व्यक्ति भी मार्केटिंग में मिलते हैं जो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा है, मैं हमारा मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे किस्से थे, बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, काफी सीखने को मिलता था। ऐसा मेरा सफर चलते रहा आगे। उसके बाद में फिर मैं केरला गया। केरला में मुझे भेजा गया था मार्केट सर्वे को। लैंग्वेज आती नहीं, करोगे क्या। वहां पे कुछ समझता नहीं था, तो फिर मैंने बोला क्या करूं। तो फिर मैंने जो पहले टैक्सी ड्राइवर लिया था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर वो ऐसा सूझा कि जिसको हिंदी आता है, मैं उसको हिंदी बोलता था, वो ट्रांसलेट करते फिर उसको बात करता था, फिर मुझे पता था। ऐसा वो तांगल के यंगवड़े स्वागतम, हम आपका स्वागत करते, इतना मैंने करके उसके मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कंप्लीट किया, रिकमेंडेशन दिया, और मेरा जो मार्केट सर्वे का जो रिपोर्ट था वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट करके माना गया, वो पब्लिश हुआ वहां पे। और दे ऑफर मी कैन यू टेक द केरला एज ए लॉन्चिंग प्रोडक्ट फॉर वी लॉन्च देयर, कैन यू टेक द केरला। बट मैंने उनको ये बताया, मैंने रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है वी शुड गो फॉर द लोकल पीपल, केरलाइट पीपल फॉर दैट पोजीशन। सो मेरे रिकमेंडेशन के अगेंस्ट में मैं नहीं जा सकता। सो दे एग्रीड फॉर दैट वन एंड दे रिक्रूटेड द न्यू केरलाइट पीपल फॉर दैट। सो ऐसा भी वो ट्रांस से आते हैं, बहुत तकलीफ होती है, कैसा जाना एंड टाइम पे डिसाइड करना, मार्केटिंग में सीखने को बहुत मिलता है। ऐसा थर्ड इंस्टेंस था कि व्हेन आई वाज एट ढानू। ढानू इज द बॉर्डर प्लेस ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। वहां पे आई वाज लुकिंग आफ्टर द मार्केट फ्रॉम द गुजरात बॉर्डर टू बॉम्बे बॉर्डर, एज वेल एज आई वाज इन चार्ज फॉर द रेलवे ऑपरेशंस एंड कंपनी का डंप, वहां से पूरा महाराष्ट्र को हम सप्लाई करते थे, वो डंप मेरे अंडर में था। एट इन द मंथ ऑफ मार्च, अराउंड समथिंग 20 मार्च के आसपास, दैट वाज डहानू पावर स्टेशन है वहां पे, देयर वाज द स्केर्सिटी ऑफ द सीमेंट एट दैट टाइम। डहानू पावर स्टेशन के जो जनरल मैनेजर है पावर का, उनसे मेरा एक डील हुआ। उस डील में हो गया 2000 मेट्रिक टन मटेरियल देना। 2000 मेट्रिक टन दे देता था। मेरा ट्रांसपोर्ट का रेट जो मेरा जनरल मैनेजर फाइनल करके आया था वो 60 रुपीज था। मैंने एक ऑब्जर्व किया था, मैं लोकल में रहता था, कि यहाँ पे जाने पे गाड़ी दो तरफ से जा सकती है। एक शॉर्टकट था, वो सिटी के अंदर से जाता था, वहां से परमिशन नहीं मिलती थी क्योंकि वो बीएससीएस, सब उसका नाम बीएससीएस था। अभी दहानू थर्मल पावर से मैंने कहा रिलायंस है, अडानी दे चलाते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बताया, मैं ऑब्जर्व किया, तो मैं बोला ये 14-15 किलोमीटर के लिए 60 रुपीज देना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है, ट्रैवल टाइम ज्यादा होता है, ट्रक का सब कुछ एक्सपेंसेस है। देन आई इंस्टेंटली आई मेड अ टेक अ मीटिंग विद देयर जनरल मैनेजर who is the plant in charge. I told him that आपने ये जो दूसरा गेट है जो सिटी से आता है, वो आप मेरे को करेंगे तो I will 10 रुपीज पर मेट्रिक टन आपको रेट में कम कर दूंगा, और मेरे को आपको डिस्पैच भी फास्ट होगा। इसमें मेरा बेनिफिट क्या था कि मैंने 60 रुपीज का जो रेट है वो 35 रुपीज कर दिया, यानी 25 रुपीज मेरे को बेनिफिट था। 10 रुपीज मैंने पास ऑन किया, 15 रुपए मेरे को बेनिफिट था। मेरे को और एक बेनिफिट था कि शॉर्टेड टाइम में मेरा ट्रक का डिलीवरी नंबर बढ़ता था, ज्यादा ट्रक्स होता। ऐसा इंस्टेंटली कुछ डिसीजन लेना पड़ता है मार्केटिंग में, बहुत डिफिकल्ट है। और इसके बाद में दैट वर्क वाज आल्सो अप्रिशिएटेड बाय मैनेजर बिकॉज़ व्हाट दैट वाज इंस्टेंट एंड आई रिड्यूस द कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देयर। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिंदगी के सफर में, वो याद रह जाते हैं।
तो अभी मतलब आर यू स्टिल इन मार्केटिंग? बिकॉज आई अंडरस्टूड कि पहले 13 साल तो आप मार्केटिंग में थे, अभी भी आप मार्केटिंग में है और यू मूव्ड इनटू ए No, डिफरेंट no, no. लाइन? After 13 years, हाँ, one of the my when I was in the Gujarat Siddhi Cement, I was looking after exports for both the organization. I was selling around 60% of material of both the organization at that time in the exports. तब मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ में काम करता है, उसका नाम था प्रसून. उसने कुछ महीने पहले ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा. He done SAP certification और SAP Siemens, he joined the Siemens. और एक दिन मेरे मोबाइल पे जर्मनी से कॉल आया. अच्छा. उसमें बोलता है, बॉस मैं प्रसून बोल रहा हूँ. तो मैं तू जर्मनी पहुंच गया? सर बॉस आपको मैंने बोला था ना कि मैं सर्टिफिकेशन एग्जाम करके कर रहा हूँ करके. सर्टिफिकेशन एग्जाम किया, मैं आईटी में आ गया. यहाँ पे आईटी में आया, यहाँ पे काम आधा पगार दुगुना. मतलब क्या बात कर रहा है? तो बोलता है आप मतलब आप भी आ जाओ, मुझे बोलता है. मैं बोला यार मेरे को कैसे जमेगा? बोलता मेरे को जमेगा तो आपको क्यों नहीं जमेगा, आ जाओ. फिर देन आई आल्सो डन द सर्टिफिकेशन एग्जाम सर्टिफिकेशन एंड देन आई जॉइन द आईटी ऑर्गेनाइजेशन एंड देन लास्ट. सॉरी, जस्ट वन थिंग, आपका इनिशियल योर इंजीनियरिंग एंड योर पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक जो आपने किया था, इज नॉट फ्रॉम कंप्यूटर, इट इज फ्रॉम सिविल. सिविल, ओके. इट इज फ्रॉम द सिविल. या इट इज फ्रॉम द सिविल. सो सर्टिफिकेशन देके फिर वी जॉइन द सीमेंस. द आईटी अरे आईटी करियर देन स्टार्टेड. उस करियर में भी बहुत. अभी भी आप आईटी में हो, मतलब यू आर स्टिल इन आईटी? आई एम इन द आईटी कंपनी. आई एम द ग्रुप मैनेजर इन एटोस प्रेजेंटली. तो ये भी एसएपी में ही काम मतलब ईआरपी पे ही काम करता है मतलब? यस एसएपी प्रोडक्ट करते हैं. यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग आए. एक बार होता मैंने बेंगलोर में आई वाज देयर फॉर 5 months for some upgrade projects when Siemens was divert because there was a failure from the Siemens project for the SAP projects. So SAP was not giving the new projects to the Siemens. लेकिन हमारे जो मार्केटिंग हेड है उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि SAP is the big partner. So we'll set up one around some 25 people in the Bangalore and they nominated me as a project manager there. I successfully completed 3 projects in 4 months. And then return back. After returning back, there was one project of Sanghi Cements. Okay. I was in the cement industry. वो project पिछले 8 महीने में कोई और चला रहा था, वो आगे नहीं जा रहा था. फिर उन्होंने बोला ये प्रोजेक्ट ले लो. तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट हाथ में लिखा. तो उसमें पहली कंडीशन थी 10 लाख रुपीस जो था एडवांस लेना था. और इन्होंने एडवांस उससे लिया ही नहीं था. अच्छा. सीमेंस ने अभी तक का. तो मैं बोला यार एडवांस नहीं लिया तो वो काम कैसा बढ़ेगा? ये लोग क्या करते थे, हमारा मैनेजमेंट के जो टॉप बॉस है उसके डायरेक्टर से काम करते थे. लेकिन क्या होता है हर कोई जैसा पुलिस स्टेशन में जाना है, सब मिनिस्टर से मिलना है तो जमादार इज मोर इम्पोर्टेंट. तब तक आपको केबिन में एंट्री नहीं मिलेगी. और कौन इफेक्टिव पर्सन है यू हैव टू चूज. सो मेरे जो कनेक्ट है सीमेंट इंडस्ट्री से आपसे, फिर मैंने कनेक्ट किया कि देखो वहां पे डायरेक्टर इज नॉट दैट मच क्लोज टू द ओनर्स. उनका जो पुराना जो एम्प्लॉय होता है सबसे पुराना आईटी मैनेजर वो काफी इन्फ्लुएंसिंग पर्सन था. उसका वो ओनर सुनते भी है भले ही लो डायरेक्टर से कम हुआ. क्योंकि मेरे वहां पे क्या होता था वो एडवांस नहीं मिला तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से तकलीफ हो रही थी. एडवांस नहीं आ रहा है कस्टमर को ना कैसा बोले. देन आई टुक द डायरेक्ट. उसको मैं बोला मैनेजर को एक काम करो, यू सेट अप अ मीटिंग विद रवि सांगी, ओनर ऑफ द सांगी ग्रुप. आई विल गिव ऑन द टेलीफोनिक कॉल. देन तभी अपना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा. आई विल टेक अ कॉल. कॉल होने के बाद में फिर मैंने रवि सांगी को इतना ही बोला, सर माई सेल्फ एंड योर मैनेजर वी रिक्वायर्ड योर हेल्प टू सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. मेरा क्वेश्चन है कि बोलते मेरी क्या हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट तो आपका है, आपको करना है. लेकिन सर हेल्प ऐसी हो रही है कि मेरे को जो एडवांस का पेमेंट जो देना था वो नहीं आया, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे को कंसल्टेंट ही नहीं दे रहा है. इसलिए हम दोनों जो है आपका मैनेजर और मैं दोनों परेशान है कि किसको कैसे आगे जाना है. आप थोड़ी हेल्प करेंगे तो हमारा बढ़ेगा. इस तरह से हमको वो सीखने को मिला कि स्टेक होल्डर को कैसे इस तरह से यूज करना चाहिए. टॉप मैनेजर वैसे एडवांस मिला और प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ. So I think that's wonderful because तुम्हारा, as you had very rightly said, तुम्हारा experience which you had was quite wide and मतलब one of the key aspects of marketing is you get to know and figure out how do you deal with people, and I think that definitely helped. Though तुम्हारा role IT है and maybe now as a senior project manager it will still be involving not only people but client management and customer satisfaction which is there.
Uh, Yeah. I think we have got a good glimpse about what you have done. So let's also try to understand a little bit more about your interest and other details which is there. So Yeah. थोड़े बहुत आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछ लिया जाए, या थोड़ा बहुत हाँ. और पता करें आपके बारे में. Okay, so now one of the very interesting tool which all of us use is WhatsApp. Yeah. तो Yeah. आपके हिसाब से does it help in connecting people or does it help in making irritating people or friends कभी कभी बुरा मान जाते? How do you use it very very effectively? ओके ओके. देखो, कोई भी चीज होता है, कोई शस्त्र रहता है, व्हाट्सएप रहो, कोई कम्युनिकेशन टूल रहो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों के रहते हैं. हाँ. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूटिलाइज इट. हम्म. मैं कैसा करता हूँ, जब मैं ऑफिस जाता था, नॉट वर्क फ्रॉम होम, तो हम्म. जब मेरा ट्रैवल टाइम था, उसी ट्रैवल टाइम पे मैं आते वक्त और जाते वक्त में कनेक्टिंग द पीपल के हिसाब से व्हाट्सएप यूज करता था. लेकिन Okay. ड्यूरिंग ऑफिस और आई नेवर यूटिलाइज. और रात को जब आधा पौन घंटा लेके पूरा फास्टली जाके उसको आंसर दो, लाइक्स दो करके, एंड जस्ट कनेक्ट द पीपल. मैं भी आपके साथ हूँ, ये हिसाब से यूज करना है. तो बट लेकिन आप कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप यूज करोगे तो आपका दूसरा वर्क हैम्पर होगा. बराबर. तो बिकॉज क्या होता है, कोई भी टूल है, इट्स अ वेरी गुड टूल. और व्हाट्सएप के कारण आप जानते हो कि हमारा जो बैच है, ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चालू हुआ, वो व्हाट्सएप के ग्रुप के कारण हम लोग इतने सालों के बाद मिले. नहीं तो हमको पता ही नहीं कि एक बंदा दुबई में बैठा है, यूएस में बैठा है, कहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं था. एक्चुअली ये बहुत सारा बेनिफिट हमारे ग्रुप को मिला है कि हम लोग एक मिनट से कनेक्ट हुए. आज का जो कॉल हुआ है अपना, वो कैसा हुआ, सेटिंग ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप के कारण अपने कम्युनिकेट हुआ. बहुत सारे आपकी जिंदगी के सफर में जितने भी प्रोग्राम्स है, फर्स्ट तो वही होता है कि व्हाट्सएप से भाई तेरा टाइम दे मुझे, तब मैं कॉल लूँ. तो ये व्हाट्सएप का यूटिलाइज आपको जिस तरह से करना है वैसा है. तो जैसे तुमने बोला कि मतलब गिवन योर वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल व्हिच इज देयर, definitely you scroll and all, but कई बार one part is about responding to people's things, the other is there are some messages which keeps on coming and otherwise, and sometimes we find something which is very very good and then we forward according to us, we like that idea and all. So how do you check whatever you are forwarding, not is what you are creating, जब forward करते हो, how do you figure out that this is something which is genuine, or do you just forward कुछ आया, पसंद आया, फॉरवर्ड कर दिया? नहीं. जैसा क्या होता है, कुछ मैसेज आता है, उसमें से 10 में से 7 पॉइंट अपने को अच्छे लगते हैं. हाँ. और इट इज अ गुड पॉइंट, देन आई फॉरवर्ड इट. 10 में, नॉट 100%, 7% भी आए तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो गुड पॉइंट्स है, मेरे फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए, तब मैं वो फॉरवर्ड करता हूँ. बराबर. लेकिन कुछ मैसेज मेरे दोस्त है, उसको मेरे को लाइक नहीं हुआ, तो उसको जस्ट इग्नोर इट. झगड़ा करने से, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस है. आज की डेट में मैं बताता हूँ, मेरा जो दोस्त मैं आपको बोल रहा था एलएनटी का, अश्विन, वो हमारा जो बिट्स पिलानी का ग्रुप है, हमें 10-12 लोग हैं. वो बंदा, उसके और मेरे व्यूज और मेरे दूसरे जो 3 लोग हैं, हम तीनों एक साइड है, वो अकेला है. लेकिन आज की डेट में मैं उसको हर बार बोलता हूँ, मैं तेरे को इंस्टिगेट करता हूँ, लिखता हूँ उसको, इंस्टिगेट कर रहा हूँ तेरे को. लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, लॉजिकल और आंसर विद फैक्ट देता है, अमेजिंग. यू हाउ टू उसके फैक्ट पूरे फिगर निकाल के बताता है. तो वो भी अपने को थॉट प्रोसेस पता चलती है. नहीं तो हम लोग तो हम ही राइट है, ऐसा नहीं है. वो जो बताता है वो अपने को पता भी तो चले. तो इसलिए उस नहीं अपने को नहीं पता, इग्नोर इट, बट एंजॉय इट. No, because I think one thing which many people's observation, and sometimes I also feel, between friends, when you're discussing stuff, most of the things are fine, but I think slowly, I don't know, people have become quite polarized. So people fight about political views which are there, because earlier it used to be my own thing. मैंने vote किया, मतलब you don't get, मतलब you don't fall into love with the government, yeah. But now there are some people who are in love with the position and with the government. I will not want to listen anything. अरे ऑक्सीजन नहीं है, तुमने बोला कैसे यार ऑक्सीजन नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तुम बोल ही नहीं सकते वगैरह. So I think, as you said, it's a tool, and it has to be used in the right fashion. So the last thing, do you think if you figure out that from your messages you're finding out that some friends are getting upset and
Yeah. they are leaving the group and otherwise, then will you stop sending those messages? No. When I spoke to those friends one to one, I Hmm. told him enjoy it or ignore it. No, But if why they're you are not willing to, bothering? if they're not willing to do it, then I'm saying, what will you do? Will you still say that, No, I okay, am मतलब taking a गया call तो with गया, them. I मतलब this already. is my choice. Yeah. No. After I told him that just okay for next 7 days you keep mum, but I will after 7 days I will add into the group. You can't. It's not your choice. You have to be our friend. No, he has to be your friend, but he is not agreeing to the kind of messaging which is there. So I'm saying, will you then back out saying that, okay, there are 100 messages which is there. I'll not send this 5 message which is irritating for this person. Yeah. Will you do Just that? I Or always tell them enjoy it or ignore it. no, I'm Just saying ignore the guy only. is not willing. No? That's your choice. I'm saying the person is not either able to enjoy it or ignore it. So he's saying, I will leave the group. Yeah. So I am saying, are Well, you going to be stopping sending those messages which no, your friend is not you liking? cannot stop. You cannot stop the others. You No, can no, stop I'm talking yourself. about you. I'm talking about you. Definitely. If one person, I'm telling this is the forwarder. This is not for that person. I will mention it. This is not for you. This is for others. Then that person will also realize this is a general thing, not for particular one person. It's not a personal thing which is there and all. It's not the personal things. Because I think as a communication medium, communication is a multifaceted thing. You will know it Yes. better as a marketing person. So there are different channels. So agar one channel is making the person not understand your point of view, as you said, you talk it Yeah. out and sort it out, which is there. Yes. It's not the only medium. Yeah, WhatsApp is not the Yeah. only medium which is there. Yeah. Okay, to coming to some more interesting part. So agar matlab Yeah. for relaxing purpose, if you get time, will you want to go on a trekking or you will want to listen to songs or sing some songs? I generally like I go to in the forest area, trekking area. वहां That is जाके what जो I think. आराम सुकून मिलता है वो यू कैन से द गुड ऑक्सीजन यू कैन से वो मुझे Yes. बहुत पसंद आता है. तो अभी वहां मतलब जाके तो अभी in the last 1 year because of lockdown and all, whenever you had a chance, you could go out or that got stopped? when I did go to the chance, I particularly my closer is the Khargar Hills. Okay. Khargar Hills are there. Hmm. Or I generally go with my 3-4 friends just for walking. It's not far, very close to us also. Okay. पास में हम लोग भी अभी जनवरी या फरवरी मंथ में भी जाके आए. अभी सब लॉकडाउन में एवरीथिंग क्लोज. हाँ, अभी तो बाहर जाना ही अभी थोड़ा कम हो सा. गया. बैचलर लाइफ में काफी आता था. अच्छा. Okay, so that makes it मतलब you are more happy going out with friends than with the family? It's not like that. मैं सभी के साथ जा सकता हूँ. Okay. Because I think your wife is and children are going to listen to this podcast, so wanted to make it clear. No, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा मैं दोनों मुझे तो अच्छा लगता है. किसी के साथ भी जा सकता हूँ. There is no issue. Okay. So from a movies perspective, अगर chance मिल जाए movie देखने का, तो will it more be of Hindi movies or Bollywood movies as we call it, or will it be a Hollywood movie? Hindi movies, Bollywood movies. Bollywood movies. So राधे देखोगे अभी मतलब which has come in? It's not like that. I am not that much new movies का तो नहीं इतना fan. लेकिन मैं वो जो movie जो देखता है उतना मैं relaxing movie के लेके देखता हूँ. So comedy movie I generally prefer the comedy movies. Okay, so what is one movie which you have seen recently which you really liked? Recently ऐसा कुछ particularly याद तो नहीं आता है. Any comedy, one of the comedy movies which you like? Comedy I like the particular Hera Fairy जो आया था. Okay. अक्षय कुमार वो काफी मुझे first part पसंद है. या second part? First one. Yeah, first is always more fun than the second. Yes, first one. Okay. So you are not on this older type. You will not go and see a chori chori or chupke chupke kind of movie. नहीं वो भी देखता हूँ. अमोल पालेकर के मूवी काफी अच्छे लगते हैं मुझे. रियलिस्टिक लगते हैं. पर्टिकुलरली जिसमें क्या होता है, आई एम फैन ऑफ द किशोर कुमार. किशोर कुमार के जब गाने आते हैं तो मैं जनरली बहुत सारा प्रेफर करता हूँ. किशोर कुमार के जो मूवी देखने के बजाय गाना सुनना भी बहुत प्रेफर करता हूँ. तो अकेले में जब रहता तो किशोर कुमार का एक गाना तो तुमने गा ही दिया था मतलब और गुनगुना दिया था थोड़े से इन द स्टार्टिंग. एनी अदर किशोर कुमार फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स? There are so many. I am also fond of that SB Balakrishnan.
प्राण उसके कृष्णम। कोई एक आध गाना के कुछ लाइंस गा दो हमारे लिए। ठीक है, मेरा फेवरेट गाना है हाँ जी। मैंने प्यार किया हुआ, उस वाह। मूवी का। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, ओ पहली नजर हल्का सा असर क्यों करने लगा इस दिल को बेकरार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। थैंक वाह यू। यार, तुम यार मतलब इतना अच्छा गाना गाते हो, मतलब तुमने सीखा हुआ है या फिर जस्ट नहीं भाई शौकीन नहीं, शौकिया कभी गाते हो? सीखा नहीं है, कुछ नहीं है, सीखने की जरूरत भी नहीं है। अपना बाथरूम काफी अच्छा है। बट मतलब महफिल वगैरह में, दोस्तों की महफिल या फैमिली के महफिल में गा लेते हो? एक आधा गाना गा लेता हूँ, ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, नहीं, और क्योंकि गाया अपने करो अपने मतलब। दोस्तों के इसमें भी काफी काफी सिंगर लोग हैं, अर्चना है, नरेंद्र काने हैं, ऐसे बड़े बड़े सिंगर जो है हाँ तो वो आप तो भी है जानते हैं। मतलब, बट तुम भी कहीं कम नहीं हो, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ना, कम तो हम किसी को मानते भी नहीं, पूरे दोस्तों को ग्रेट मानते तो खुद को भी कम नहीं मानते। मानते, बराबर, ये बात सही है। चलो फिर मतलब अभी अगर another question which might ensure that you might not get food, so who will be a हाँ, better cook, your mother or bhabhi ji? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी सिंपल। Okay. शादी के पहले हाँ मदर का फूड सबसे बेस्ट था। हाँ मदर के साथ में मेरी आंटी जो है उसका भी फूड, मेरे इसको मैं वीणा काकू बोलता हूँ, हाँ। शी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड कुक। लेकिन जब मैंने वाइफ के हाथ का जब खाना खाना शुरू किया, हम्म। तो आई विल टेल यू फ्रॉम माई इन लॉज की तरफ से बोलो या मेरे पेरेंट्स की तरफ से बोलो, शी इज द बेस्ट कुक, ओह, शी इज द बेस्ट, रियली बेस्ट। मतलब ये अभी इनवाइट लेना पड़ेगा, मतलब आके भाभी जी का इनवाइट की हाथ का जरूरत ही खाना नहीं, खाने। डायरेक्ट आ जा सकते हो। हाँ वो तो डायरेक्ट आप मतलब कुछ स्पेशल भी तो बनाना पड़ेगा ना भाभी को, आ हाँ गए अरे वगैरह तभी मतलब, तो मतलब वैसे थोड़ी सब ना होगा। सब सब मिल जाता है स्पेशल, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो स्पेशल में अभी इज इट वेजिटेरियन फूड विच इज हर स्पेशलिटी और नॉन वेजिटेरियन फूड? शी कैन प्रिपेयर बोथ द फूड्स बट आई अच्छा प्रिफर वेज फूड, शी अच्छा, यू लाइक्स नॉन वेज। अच्छा। मुझे वेज पसंद है। सो वेज में व्हाट इज योर, अगर एक डिश बनाना बोलना है भाभी जी को तो क्या बनाने बोलोगे? वेज में मेरे को आलू और वो बैंगन की जो सब्जी है ना, वो मुझे अच्छा, पसंद आती है। तो महाराष्ट्रियन स्टाइल वेंगे वालू। महाराष्ट्र स्टाइल। हाँ, हाँ 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 हाँ। गुड। ओके, I think this last 1 year has been a life changer for many of us in a very very different way. तो या ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि मतलब ये कोविड सिचुएशन में क्या नए चीजें आपने सीखी? मे बी 3-4 चीजें तो नया सीख ही लिया होगा इन द लास्ट वन अरे ईयर कोविड कोविड सिचुएशन में बहुत सारी पॉजिटिव थिंग भी हुई है। अच्छा बोलिए। हम लोग सब लोग है ना, हाँ। सेल्फ एंटरटेनमेंट सीख गए, ऑल पीपल। ओके ओके। आप भी सीखोगे क्योंकि हर को अभी खुद रहना ही है। क्वारंटाइन हाँ, पीपल में जो जो रहे उनको तो बराबर 14 दिन अकेला रहना है, तो सेल्फ बराबर। एंटरटेनमेंट सब लोग सीखे। हम्म, मैं खुद एडिशनल एक्टिविटी सीख गया। हाँ। और लेकिन जैसा एसी का जो सर्विसिंग था वो मैं अभी खुद करना चालू हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पूरा ग्रिल फिल्टर को विल्टर पेंटिंग, चेंज हो गए, पूरा फिल्टर विल्टर हाँ सब सब अभी वो सारे? चेंज करना मैं सीख गया। वीडियो अपना गूगल पे जाओ, वीडियोस देखो, देख के करो। ओके ओके एक्वागार्ड का फिल्टर चेंज करना वो सीख गया। ओके। ग्रिल को पेंटिंग करना वो सीख गया। हाँ और जो जो दोस्तों को कितने सालों फोन नहीं करता था, हाँ। उनको मैं फोन भी करना चाह रहा हूँ, पहले सिर्फ ऐसा हाँ बाद में करते हैं मिलते हैं करके, वो कनेक्टिविटी बढ़ गई। हम्म, बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स है, okay. जैसे सबको बहुत बहुत पीपल को सीखने को मिला है। तो खाना भी बनाया, कुकिंग के बिकॉज फूड हम आइटम सीख लिया। वी टॉक्ड अबाउट फूड अर्लियर, तो खाना बनाना भी सीखा कुछ नया या फिर? खाना बना थोड़ा थोड़ा सीख लिया, असिस्टेंट करके काम करता हूँ कभी कभी। तो क्या बना लेते हो मतलब खाने में? सब्जी बना सकता हूँ, सब्जी आलू भुर्जी। क्या बात। रोटी नहीं आता है, रोटी नहीं सीखा। हाँ रोटी तो बाकी डिफिकल्ट खिचड़ी है। दाल सब बना लेता हूँ अभी।
हाँ मतलब लास्ट टाइम सरवाइव हो जाओगे last year तो मगर मैं हाँ लास्ट ईयर तो मैंने वो लड्डू भी बनाए थे, बेसन क्या के बात लड्डू। क्या बात हाँ, यार, नेक्स्ट टाइम अंडर बनाए तो फिर गाइडेंस। एटलीस्ट कोरियर कर देना, मतलब बेसन के लड्डू तो भेज ही सकते हो तुम बैंगलोर। आ भी सकते हो, कुरियर से आ सकते हो तो आ जाओ। नहीं आने का तो ठीक है, मतलब कोरियर से अब एसेंशियल सर्विस बोलेंगे क्या, मैं अगर कोरियर से जाऊंगा तो पता नहीं, बट अच्छा। बेसन का लड्डू तो बोल ही सकते हैं, एसेंशियल यार, हाँ मतलब हाँ, बेसन का लड्डू नहीं खाया तो फिर वो मजा नहीं आया काइंड ऑफ। मजा नहीं आता है। But I think, हाँ, Shailendra, it was such a wonderful to know about your journey. मतलब आपने क्या क्या किया, and you have done so many things so much in the efficient fashion which is there. और फिर तुम्हारी क्वालिटीज इतनी बढ़िया है कि दोस्तों के साथ मिल के रहने का, उनके साथ कांटेक्ट में रहने का, दो तुम इतने, तुम्हारी इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आप आईटी में हो. आई हैव वर्कड इन आईटी फॉर सम इयर्स, एंड the continuous phone calls which keeps on happening, and हाँ, hundreds of Zoom calls or non-Zoom calls or whatever con calls which are there. So I think it was wonderful that आपने time निकाला and we could catch up and know about your जिंदगी का सफर. So I wish you all the best, and keep sparing this happiness with all people around. यस इज कंटिन्यू, जिएंगे और मिलेंगे भी। Definitely, ओके, definitely. डेफिनेटली, थैंक यू। चलो, bye bye, बाय बाय नमस्कार. बाय, नमस्कार।